جب ایک بیٹا تنہا سنسان صحرا میں بھوک پیاس اور اندھیرے سے گھر جائے اور اس کے کانوں میں صرف اپنے مرنے والے باپ کی آواز گونجے، اللہ پر یقین رکھنا، وہ تمہیں وہاں سہارا دے گا جہاں کوئی اور نہ ہوگا، تو کیا واقعی بس اتنا سا یقین کافی ہوتا ہے؟ یہ کہانی تمہارے دل کی دھڑکن بدل سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے نوجوان کا سفر ہے جو تمہاری اپنی حقیقت بن سکتا ہے۔ زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں شاہ زیب نام کا نوجوان اپنے والد عبداللہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ان کی زندگی ایک چھوٹی سی دکان پر چلتی، جہاں دن بھر محنت کرتے۔ گھر میں دو ہی تھے اور ایک دوسرے کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے گھر میں بیٹھتے، عبداللہ اکثر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کاروبار ہمیشہ اللہ کے بھروسے پر چلاؤ، دکان تو بس ایک ذریعہ ہے، حقیقی راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کا دامن تھامے رکھنا، چاہے تمہیں اس کی قیمت اپنے سارے مال سے چکانی پڑے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ وقت آئے گا جب تمہیں کوئی سہارا نہ دے رہا ہوگا، تب صرف اللہ ہی تمہارا سہارا بنے گا۔ یہ سن کر شاہ زیب بے چین ہو کر بولا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ عبداللہ نے بیٹے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، مسکرایا اور کہا، بیٹا، یہی تو میں چاہتا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، لیکن تم کبھی خود کو تنہا محسوس مت کرنا۔ اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا تو وہ تمہارا نگہبان ہوگا اور تم کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ باپ کی باتیں دل میں اتری، مگر شاہ زیب کے دل میں ایک سوال جاگا۔ شاہ زیب دل ہی دل میں سوچتا، سب کچھ تو میرے عمل سے ہوتا ہے، پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ یہی سوچ کر وہ باپ کی باتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اسے اللہ ایک ایسا منظر دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اس کے بعد وہ دن آ ہی گیا جس کا ذکر عبداللہ اکثر کیا کرتا تھا۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب حقیقتاً شاہ زیب کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ جب وہ دکان پر جاتا، ہر چیز اسے اپنے باپ کی یاد دلاتی۔ جب گھر واپس آتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان چار دیواریوں میں اب صرف وہی رہ گیا تھا اور اس کے دل میں وہی باتیں گونجتی رہتی جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہ لیتا تھا۔ باپ کے بغیر زندگی مشکل تھی، مگر وقت کسی نہ کسی طرح گزر ہی رہا تھا۔ شاہ زیب نے خود کو کام میں مشغول رکھا، مگر تنہائی کا احساس کبھی ختم نہ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اسے دکان کے لیے مال خریدنے دوسرے شہر جانا پڑا۔ وہاں سے وہ کم قیمت پر سامان لا کر منافع کما سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے باپ کے بغیر اتنا دور جا رہا تھا، مگر کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے ہمت کرنی پڑی۔ لیکن شاہ زیب نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر اس کی سوچوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اس کے ذہن کو ہلا کر رکھ دے گا۔ امید کے سہارے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ طویل تھا اور اجنبی بھی، لیکن شاہ زیب پر امید تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ مگر جیسے جیسے سورج مغرب کی جانب جھکنے لگا، اس کی امیدیں بھی لرزنے لگی۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا پھیلنے لگا۔ مشکل یہ تھی کہ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ صحرا میں ختم ہو چکا تھا۔ اب بھوک پیاس نے اس کے جسم کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا اور خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور گہرے جنگل سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ گھوڑا بھی بے چین ہو چکا تھا، اس کے قدم ڈگمگانے لگے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ شاہ زیب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن چاروں طرف بے رحم تاریکی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور، شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے۔ مگر جو کچھ آگے ہوا وہ شاہ زیب کے تصور سے بھی کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ کچھ اور سفر کے بعد شاہ زیب کی بھوک اور پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ حیران پریشان
ये सोच रहा था कि शायद उसकी मौत इस वीराने में लिखी जा चुकी है। न कोई महफूज जगह, न पानी, न कोई खाने का इंतजाम वगैरह। भूख तो वो किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर रहा था, मगर प्यास ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाया, मगर कुछ ही दूर जाकर घोड़ा रुक गया। अंधेरे में सफर करना मुमकिन न था। खौफ और थकन से निढाल शाहजेब जमीन पर लेट गया, मगर प्यास की शिद्दत ने नींद को कोसों दूर कर दिया था। लेटे लेटे उसे अपने वालिद की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां कोई और ना होगा। ये सोचकर शाहजेब के लबों से बेइख्तियार एक दुआ निकली। ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस सुनसान सहरा में मेरे लिए पानी और रिस्क का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूं। दुआ के बाद वो वहीं जमीन पर लेट गया। कुछ वक्त गुजरा। अचानक घोड़ा घबरा कर उठ खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। घोड़े को भागता देख शाहजेब घबरा गया, फौरन उसके पीछे दौड़ा। वो जानता था कि अगर घोड़ा चला गया तो वो मुकम्मल अकेला रह जाएगा, इसलिए शाहजेब फौरन उसके पीछे दौड़ा। कुछ फासले पर जाकर घोड़ा अचानक रुक गया। शाहजेब ने फौरन लपक कर उसे काबू किया, मगर अब एक और मुश्किल आन खड़ी हुई। अंधेरे में वो रास्ता भटक चुका था। मायूस होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। चंद कदम ही चला था कि दूर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। दिल में उम्मीद जागी, चलो शायद वहीं रात गुजार ली जाए। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बेहद ख्याल रखा जाता था, सोने और खाने का मुकम्मल इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो हैरत ज़दा रह गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद दिखाई दे रहे थे। दिल को सुकून हुआ, किसी न किसी घर में पनाह मिल ही जाएगी। घोड़े से उतरकर वो करीब पहुंचा, मगर देखा घर पर ताला लगा हुआ था। हर तरफ घर बंद थे, जैसे बस्ती वक्त से पहले ही वीरान हो चुकी हो। ये देखकर शाहजेब सख्त हैरान हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरा गांव सुनसान हो, हर दरवाजा बंद, हर घर खाली पड़ा हुआ है। दिल में खौफ सा बैठने लगा, मगर हिम्मत की और रोशनी की समत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? शाहजेब ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। शाहजेब ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो एक और हैरत उसका इंतजार कर रही थी। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा हुआ था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। शाहजेब उसके करीब बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? शाहजेब ने पूरी दास्तान बयान की और अब वो इस अजीबो खामोश बस्ती के बारे में मजीद जानने वाला था। और शाहजेब अब उस माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर बेकरारी से बोला, भाई साहब, मुझे शदीद प्यास लग रही है, मेहरबानी करें मुझे पानी दे दें, मैं भूख से भी निढाल हो चुका हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, यहां पानी नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर एक रोशनी चमक रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का इंतजाम बस अल्लाह ही करेगा। यह सुनकर शाहजेब को हैरत हुई, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे मजबूर करके रख दिया था। वो बुझे कदमों के साथ उस रोशनी की जानिब रवाना हो गया। करीब पहुंचा तो देखा एक पुरानी सी झोपड़ी थी और अंदर से कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये मंजर देखकर शाहजेब के दिल में खौफ सा बैठ गया। अब ये कौन सी मखलूक है? लेकिन हिम्मत करके झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ कहो, मुझे यकीन है कि तुम्हें पानी चाहिए। शाहजेब हैरत ज़दा रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ मुझे पानी चाहिए। अंदर से फिर आवाज आई, तो अंदर आ जाओ। शाहजेब ने सारी हिम्मत जमा की, डर के बावजूद अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही देखा दिल को सुकून सा मिला। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम से कम ये कोई जनी आसिब नहीं था, ये तो अब यकीन हो चुका था। नमाज मुकम्मल करके बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा
जब इंसान का अल्लाह पर यकीन कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते से भटक जाता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा हुआ है, उठाओ और चले जाओ। शाहजेब ने मटका उठाया और वापस चलने लगा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजती रही। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर यकीन कमजोर हो चुका है? ये सोच उसे बेचैन करके रख गई, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा, क्यों ना यही पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कुछ कम हो जाए। मगर फौरन एक ख्याल आया, माजूर शख्स भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही फासला रह गया है, जाकर दोनों साथ पिएंगे। ये सोचकर वो तेज कदमों के साथ चलने लगा, मगर जैसे ही घर के करीब पहुंचा अंधेरे में दरवाजे से टकरा गया। तवाज़ुन बिगड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही मटका भी टूट गया और सारा पानी बह गया। शाहजेब गुस्से से भरा हुआ था, मगर खुद पर काबू रखा और चुपचाप अंदर चला गया। माजूर शख्स ने नरमी से पूछा, क्या पानी नहीं मिला? शाहजेब ने झंझला के जवाब दिया, नहीं, मटका मेरे हाथ से गिर गया। फिर थके हुए लहजे में बोला, भाई अब मुझ में बात करने की भी ताकत नहीं बची। अगर पानी है तो बस इतना दे दे कि सांस ले सकूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माजूर आदमी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर यह शख्स वाकई भूखा और प्यासा है तो तू मेरी मदद कर ताकि मैं इस मुसाफिर की मदद कर सकूं। शाहजेब को गुस्सा आया, मगर खामोश रहा। दिल में सोचने लगा, ये कम अक्ल आदमी, इस सुनसान जगह पर कौन आएगा मदद करने? चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजेब चौंक उठा, ये कौन हो सकता है? माजूर शख्स मुस्कुरा कर बोला, जो भी है तेरे लिए खाने और पानी का बंदोबस्त लेकर आया होगा। ये सुनकर शाहजेब हैरत में पड़ गया, ये कैसी बातें कर रहा है? दरवाजा खुला तो वही बुजुर्ग शख्स खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, तुझसे तो एक मटका भी न संभाला गया, ये लो पानी और खाना, और हाँ, घोड़े के लिए भी पानी रखा है। तुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी है, जानवर का भी कुछ ख्याल करो। शाहजेब हैरान रह गया, ये दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे सब कुछ जानते हो, मगर भूख और प्यास ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। फौरन पानी पिया और खाने पर टूट पड़ा। जब सेर हो गया तो जहन में सवालात उभरने लगे। वो माजूर शख्स के करीब गया और बोला, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी है। माजूर शख्स नरमी से बोला, अभी नहीं, पहले मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। शाहजेब ने फौरन पानी दिया और खुद थकावट से जमीन पर लेट गया। सोचता रहा, ये कौन लोग हैं जो इतनी अजीब बातें कर रहे हैं, और नींद की शिद्दत में सो गया। सुबह आंख खुली तो देखा माजूर शख्स नमाज में मशगूल था। शाहजेब खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। नमाज खत्म हुई तो फौरन बोल पड़ा, भाई साहब, अब तो मेरे सवालों का जवाब दे दे। माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, तुम भी अजीब हो, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, मगर तुमने ना रात को नमाज पढ़ी ना शुक्र अदा किया। ये सब कुछ सुनकर सुबह के वक्त शाहजेब को शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। फौरन वजू किया, नमाज अदा की, फिर घोड़े पर सामान रखा और रवाना होने लगा। पीछे से माजूर शख्स ने आवाज दी, जो पूछना है पूछ लो। शाहजेब ने हैरत से पूछा, ये बस्ती खाली क्यों है? माजूर शख्स ने जवाब दिया, बारिश के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है, लोग आर्जी तौर पर ऊपर इलाकों में चले जाते हैं। शाहजेब ने पूछा, तो फिर आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? वो बोला, मैं जा ही नहीं सकता और इबादत के लिए ये जगह छोड़ना नहीं चाहता। फिर शाहजेब ने पूछा, और वो बुजुर्ग कौन थे? माजूर शख्स मुस्कुराकर बोला, अल्लाह का एक नेक बंदा, सारी रात इबादत करता है और गरीबों की मदद करता है। शाहजेब ने आखिरी सवाल किया, तुम्हें कैसे यकीन था कि खाना जरूर आ जाएगा? माजूर शख्स हंसा और कहने लगा, अगर मालिक से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मैं 17 साल से यहाँ रह रहा हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ने मुझे भूखा रखा हो। कल बस थोड़ा सा देर से खाना मिला तुम्हारी वजह से। उसके बाद वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, जब तुमने सहरा में अल्लाह को पुकारा तो घोड़ा डर गया। ये मुसीबत नहीं थी, ये रहमत थी। जहां तुमने रात गुजारनी थी वो जगह ऐसी थी जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अल्लाह ने तुम्हें बचाया, वो रास्ता बनाने वाला है, चाहे वो सहरा हो या कोई और जगह। शाहजेब वापस चल पड़ा और रास्ते में
उसे अपने वालिद की बातें याद आईं। अल्लाह उन्हें वहीं मिलता है जहां कोई दूसरा नहीं होता, और अगर ईमान हो तो वो रास्ते बनाता है, चाहे वो सहरा हो या अंधेरा। इस वाक़ये के बाद शाहज़ेब का ईमान मजीद मजबूत हो गया। अब वो हर काम अल्लाह पर भरोसा करके करने लगा। अगर आपने पूरी कहानी दिल से सुनी तो कमेंट में अल्लाह काफी है लिखें, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि कौन कौन इस रोशनी तक पहुंचा।